So abstract writing is not very difficult if you know how to concise. Yes, ma'am. If you have been doing précis writing, and if you know how to write it in simple words, in a few words, if you can concise the paragraph into one sentence, then you can be easily doing abstract writing. So the first question is, what do you understand by the term abstract? Abstract in English means symbolic. Symbol. Something which is clear, but something is hidden. कुछ क्लियर है और कुछ हिडन है. आपने कभी देखा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कैसा होता है? Not clear, abstract. Not clear, little bit. Something is clear, something is shown, something is very clear, but not all, not everything. It is symbolic. Have you seen an abstract painting? You have not seen an abstract painting. So as I said, abstract gives you an idea of the complete picture. An idea. It is a short form. And it gives you a feeling of something which you already know. आप कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या है, देख के आप समझ सकते हैं कि ये क्या, किस चीज का पेंटिंग है. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग. अगर पेंटिंग के बारे में बात करें तो आई विल शो यू एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग. और अगर एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होता है किसी कंप्लीट चीज का मेन चीज निकाला हुआ. यू एक्सट्रैक्टेड समथिंग फ्रॉम द, नॉट अ समरी, but you are extracting some important parts or the key elements of the entire text. और सबसे बाद में आप लिखते हैं, जब abstract आप लिखते हैं, that is always in the end. First of all, let us see what is an abstract painting. It is a complete idea of something you can connect with. For example, can you see the screen now? Now, what is this? This symbolic picture. Size. How do you know it is an abstract painting of Ganesha? How do you know? How do you know? Some pictures are there. It is not the complete thing. Now look at this picture. What is it? This is the face of man. Where is the face of man? Look at this picture. So many pictures are there. Now, this picture which you see, Radha Krishna, an abstract painting of Radha Krishna. It will give you an idea कि क्या चीज है. Right? अब ये पिक्चर देखिए जिसमें बहुत सारे फेसेस. This picture. ये क्या बता रहा है?
हाँ, instruments है. There is also a man, the Krishna, portrait of a Krishna with a flute. आप कैसे हम समझे, कैसे समझे कि ये कृष्णा है with a flute? The flute symbolic है that this is a picture of Krishna. उसमें गिटार भी है. It means you can name anything. इसमें पेड़ भी है. You can see people also. Musical instruments. It means अगर पूरे पिक्चर को आपको कहा जाए इसका कुछ एक नाम दे दो, तो क्या नाम देंगे आप इसे? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है. मतलब इट इज नॉट क्लियर कि बोलना क्या चाह रहा है. बहुत सारी चीजों को दिखा दिया आपको. इट इज द मेन आइडिया ऑफ अ कंप्लीट टेक्स्ट. हो सकता है कि किसी ने कोई कहानी लिखी होगी जिसका ये एब्स्ट्रैक्ट, तो आप ये कहानी पढ़ना चाहेंगे जरूर. किसी पिक्चर को देख के आपको अगर जिज्ञासा होती है कि मुझे ये फिल्म देखनी है या मुझे ये जानना है कि क्या आर्टिकल है, तो उसकी पेंटिंग को देख करके या एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ करके आप डिसाइड करेंगे कि ये हमको देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए या नहीं. So this is about abstract painting, but when you're talking about abstract writing, वो कैसे फर्क है? How is that different from abstract painting? In business English, we'll be knowing what is abstract writing, why it is important. So literary meaning of abstract is an idea. In abstract, something which is clear, something is clear. Like you saw, something was clear in the picture that this was Radha Krishna. This was something about bhajan and kirtan and all that, because there were musical instruments over there. How could you know it is about bhajan and kirtan? Because there was also a picture of Krishna. नहीं तो हम बोलते हैं म्यूजिक क्लब है. This is not a music club, but yeah, it is the greatest of all club, isn't it? So in English, abstract writing, in business English, first you write an article. पहले आप एक आर्टिकल लिखते हैं, एक स्टोरी लिखते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं. उसके बाद आप उसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल के आप बनाते हैं. मेन चीज है you extract, you take out some important points or key elements and you make an abstract. An abstract should not be of more than 1 or 2 paragraphs. Short 2 paragraphs. And an abstract comes from a Latin word, which means a Latin word abstractum, which means condensed. एकदम से it should be, your abstract should be rich. It should include everything which is in the article. जैसा आपने देखा इस abstract painting में, if somebody has written something, an article about that picture, उसने क्या इंक्लूड किया? वो सारी चीजें इंक्लूड कर दिया उसमें जो भी आर्टिकल में रहा होगा. अगर हम ये पेंटिंग बनाते हैं किसी राइटअप के बाद, आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना आप स्टोरी, तो कभी कभी इलस्ट्रेशंस भी रहता है, पिक्चर रहता है. तो पिक्चर देख के आप क्या डिसाइड करते हैं ना कि पढ़ने की नहीं कहानी इसको. हाँ, पिक्चर देख के मालूम पड़ लेती क्या क्या हुआ होगा, तो आपको इंटरेस्ट जगता है आपका कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं. बड़े हो गया छोटे क्लास में. अभी भी किसी मैगजीन में अगर फोटो पिक्चर्स आते हैं, विजुअल्स रहता है, तो आपको क्लियर बट आइडिया मिल जाता है. यू गेट एन आइडिया कि इसमें इसको स्टोरी में क्या रहा होगा और क्या इसमें होगा, वो पिक्चर्स के थ्रू बता देते हैं. So the picture also gives you an idea of the complete picture, and that will help you to decide कि कहानी मैं पढ़ूं या मैं ना पढ़ूं. One more example. You all must be watching pictures. Pictures देखते होंगे आप लोग? Yes, no? ट्रेलर देखते हैं आप लोग? ट्रेलर? Yes. Trailer. What is the trailer?
That is like an abstract. Trailer will help you to decide that this movie should be watched or not. Supposing you show a picture, a trailer of a fight scene of an action movie to your grandmother or your mother, she does not like action movies. तो उनके पास उनको दिखाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, इस पिक्चर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? वो उसी वक्त बता देंगे ना, मुझे ऐसी पिक्चरें नहीं देखनी है. और किसी धार्मिक रिलीजियस आप दिखाते हैं अपने ग्रैंडमदर को दिखाते कि दादी बहुत अच्छी फिल्म है, आप देखोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे. तो बोलेंगे नहीं, मुझे फिल्में मैं नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं देखना, हम कहाँ पिक्चर देखते हैं. तो देखो तो आपको एक बार देखो, तुम जरूर देखोगी. फिर आप दिखाते हैं वो ट्रेलर महादेव एंड ऑल दैट. तो टीवी सीरियल आता है कृष्णा या महादेव, तो लोग बहुत, रामायण महाभारत लोग बहुत शौक से देखते थे. क्यों देखते थे? हाँ, बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में आया कि हाँ, हम लोग तो कहानी पढ़े नहीं, लेकिन अब हम देख के समझ में हमको आ रहा है. तो आई थिंक एवरीबडी watches रामायण whenever it is screened. तो ट्रेलर की बात कर रहे थे हम. ट्रेलर देख करके आप डिसाइड करते हैं whether you are going to watch the movie or not. सिमिलरली आपका एब्स्ट्रैक्ट जो आप लिखेंगे उसको पढ़ करके लोग डिसाइड करेंगे कि ये पढ़ने लायक आर्टिकल है या डंप करने लायक आर्टिकल है. राइट? तो सबसे पहले अपनी आर्टिकल लिखेंगे, अपनी स्टोरी लिखेंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, और सबसे बाद में आप लिखेंगे अपना एब्स्ट्रैक्ट. लेकिन रीडर सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ता है, बिकॉज फर्स्ट पेज व्हेन यू टर्न द पेज, पहला पेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. आपके मैनुअल है, इंग्लिश वाले मैनुअल है ना, किताब है ना? हैव यू गॉट योर बुक और नॉट? किताब मिली है कि नहीं? उसका फर्स्ट पेज में क्या है देखो तो जरा. पहला पेज तुम देखो ना, सबसे पहला नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट से भी पहले. That is an abstract. हाँ, मतलब इस कंटेंट में कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें इट विल गिव यू एन आइडिया कि किताब में है क्या. अभी पढ़ने मतलब उसको वो क्या है? दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, जो कि बता रहा है कि इस किताब में कैसे कैसे क्या क्या है और पढ़ना जरूरी क्यों आपको. Did you understand? Technically speaking, an abstract is a short version which gives an idea to the reader, which should include all the key elements. सारे की एलिमेंट जो भी आपने रिपोर्ट में लिखे हैं वो सारे की एलिमेंट्स उस एब्स्ट्रैक्ट में होने चाहिए. Right? Now share the screen and you will take down some notes and then I will give you assignments. Writing an abstract. Often when asked to write a report or article, you will be required to include an article, an abstract. जब कभी आपको कहा जाएगा रिपोर्ट लिखिए या कोई आर्टिकल लिखिए या कोई प्रोजेक्ट बनाइए या कोई स्टोरी लिखिए या कोई स्पीच लिखिए, कुछ भी लिखिए आप, तो you will be, it is mandatory, it is important to write an abstract. This is usually a very concise summary of what the report or article is all about. So what is an abstract? It is a concise summary, but it is not a summary. Summary is different, abstract is different. Summary tells you everything.
In a trailer, do they show you everything? Do they show you all the songs? A few lines. So similarly, okay, 2-3 lines. Similarly, an abstract is something which gives you an idea of what your report is all about. A summary will give the whole story in short. But here you're not giving a short story. Here you're not summarizing. You are only giving the key elements of what is in your article or what is in your report. The abstract can be read to get a quick overview. After reading the abstract, the reader will get a quick overview of what your article is all about. The abstract can be concise into 1 or 2 paragraphs, and they are basically 2 types, the informative and the descriptive type. We'll talk about that later. It tells the reader what to expect in your work. When you write an abstract, you're telling the reader, आप जाहिर करते हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है मेरे रिपोर्ट में. You are preparing the reader what you are, about what and how you have compiled this report or article. And it should be based on all that you have written. Never write something in an abstract which you have never mentioned what you have not written in the report. कभी कभी कोई वीडियो वायरल हो जाता है, ऐसा कुछ लिख देगा कि इसमें आपको सब सच्चाई पता चल जाएगी, आज उस रात क्या हुआ था. अभी भी आता वायरल इस तरह के. सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उस सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ था, देखेंगे तो आप नहीं, कमजोर दिल वाले कृपया इसको ना देखें. और जब देखते हैं तो ऐसा कुछ. अभी कल हमने देखा, मुझे इतनी हंसी है, मुझे याद आया, एब्स्ट्रैक्ट में ये सब आपको बताएंगे कि क्या है. मतलब कि उसमें लिखा होता है, इस बच्चे को जरूर देखिए, कृपया अंत तक बने रहिए. इस बच्चे में दिव्य शक्ति है, शक्तियां है, 7 साल की है, ये 7 महीने की है, और क्या क्या करतब दिखाती है आपको. और हमको भी इंटरेस्ट हो गया, क्या है भाई, 7 महीने की बच्ची है, दिव्य शक्ति है. और मैंने भी देख लिया. अंत में मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है. फिर कमेंट जब पढ़ना शुरू किए तो लगा पहले कमेंट पढ़ लेना चाहिए था. तो सब लोगों ने इसको इतना अब्यूज किया कि फालतू का बकवास मत करो, मतलब ऐसे वीडियो बनाना बंद करो. और तुम पागल हो. जब कमेंट आते हैं लोगों के, रियली, उस वीडियो में कुछ भी नहीं था. एक 7 महीने की बच्ची थी जो पैर, वो चल नहीं रही थी, लेकिन ऐसे ही होता है ना, बैठ के आगे बढ़ना. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सारे बच्चे करते हैं. तो इस तरह का भी वीडियोस हम देखते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उस रात क्या हुआ था. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. फेक न्यूज करते करते सब कंपाइल कर लेता है, उसी को रिपीट करता रहता है, एंड लोगों की गालियां खाता है. राइट. अभी नहीं देखा तो कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं जान पाओगे. अमिताभ बच्चन के घर में हादसा, आप देखेंगे कि बताएं क्या हो गया भाई घर. तो कुछ नहीं, बात कुछ जीएसटी की कर रहे लोग, कुछ एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दे आर राइटिंग समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू, जो कि बहुत गलत है. सिमिलरली इन एन एब्स्ट्रैक्ट, वो सब कुछ आप नहीं लिखिएगा अपने एब्स्ट्रैक्ट में जो कि आपने मेंशन, जो कि आप मेंशन नहीं करना है, जो कि आपने नहीं लिखा है. नहीं तो वही हाल होगा जो लोगों का होता है, जो वायरल वीडियोस बनाते हैं और सनसनीखेज करके उसको दिखाते हैं, और कोई ऐसी कोई बात उसमें रहती नहीं. Now comes the definition of abstract. सब्जेक्ट तो एक लाइन का है ना, चिट्ठी का एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाओगे. एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपका किसी प्रोजेक्ट का, किसी रिपोर्ट राइटिंग का, हाँ, एक तरह से दैट इज आल्सो गिव यू एन आइडिया. सब्जेक्ट लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेन थिंग. सब्जेक्ट लाइन पढ़ के आप डिसाइड करेंगे कि चिट्ठी में क्या है. और कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट लेटर
सब्जेक्ट पढ़ करके लेटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट। वो लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेटर में सब्जेक्ट पढ़ के ही काम हो सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप नहीं जान पाएगा कि मेरे रिपोर्ट में क्या है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उनको बहुत एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपको ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाले को एक इंटरेस्ट जगा करके, हाँ, कि इसको देखना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उस तरह के बुक बंद करिए 1 मिनट के लिए, तो बुक आपके होमवर्क के लिए करके बनाते रहिए, पढ़ा रहे हैं आपको समझिए इस चीज को, ठीक है। बुक में तो लिखा है समरी, बट इट इज नॉट ए समरी। मैंने प्रूव कर दिया समरी क्यों नहीं। समरी में बिगिनिंग है, बॉडी है, एंड है। इसमें बिगिनिंग, बॉडी, एंड नहीं था, इसमें मेन पॉइंट्स ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। So definition. The word abstract comes from a Latin word abstractum. आप देख रहे हैं बिजनेस इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स बाहर के, लाइक रेज्यूमे, करिकुलम वाइटे, पोस्ट स्क्रिप्टम, नोटा बेने, मेमोरेंडम, ये सारे वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? आउट ऑफ इंग्लिश। So the Latin word abstractum, which means a condensed form of a longer piece of writing. So what is an abstract? A condensed form. Shortened kya hua, lekin rich in content, because it has to include everything which is in the report. So the abstract can be either descriptive, number one. There are two main types of abstract: the descriptive, the informative, and of course there's also the scientific. Let us talk about the most important, the most common types of abstract, which is the descriptive and the informative. Now, can someone tell me what is descriptive and informative? In business letter writing, in business writing, you must have, if you remember, there are 4 types of writing styles. Yaad hai ki nahi? Yes, ma'am. Or what are they? Okay, narrative, argumentative, descriptive, and informative. Now, what do you mean by descriptive writing? You must know before you write an abstract, you must know what is descriptive writing. You all never gave your assignment, submitted your assignment, writing styles pe. Did you submit? All right, the descriptive and the informative abstract. The type of abstract you write depends on your discipline area. It means आप कौन सा चूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव चूज करेंगे या इंफॉर्मेटिव चूज करेंगे, डिपेंड्स ऑन what your subject, what your report is all about. The next question is, why do we write an abstract? क्यों इतना जरूरी है? Why do you want to see the trailer? Why it is important to see the trailer? Now I have decided, before I see any viral videos, I will read the comments first and then I will see the videos. उतना टाइम किसके पास है? पूरी कहानी पढ़ने से बढ़िया के ओवरव्यू दे रही कहानी मेरे लायक है, पढ़ने लायक है कि नहीं, या डंप करने लायक, टाइम वेस्ट करने लायक है। तो सबसे जरूरी है, उसको क्यों जरूरी है एब्स्ट्रैक्ट लिखना? इसलिए जरूरी है ताकि किसी रीडर को ओवरव्यू मिल जाए कि अंदर में क्या है। ये गेटवे है, एब्स्ट्रैक्ट इज द गेटवे टू द मेन पासवे, इज द पासपोर्ट टू योर द मेन गेट है वो। अब वो मेन गेट में झोल चक्कर लगा है, टूटा फूटा बना हुआ है, तो क्या जाएगा कोई अंदर? जाएगा कोई क्या?
बाहर का जो मेन गेट जितना सजा हुआ रहता है, कितना रहता ब्यूटीफुल, तो मन करता अंदर जाके देखेगी क्या है। लेकिन अब वहीं पे आप एक खूंखार डॉग को पाल रखे हुए हैं, तो देख करके वहां क्या उस गली से भी गुजरना मुश्किल है। So an abstract is written so that it you can welcome the reader कि देखिए ये है, और that is your main gate and your drawing room. अब जिसका ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है तो अंदर भी अच्छा ही होगा। अब ड्राइंग रूम में हम देखेंगे कि टूटा फूटा कुछ रखा हुआ है, कुछ झाड़ू भी नहीं हुआ है, तो इसके अंदर में, इसके घर के अंदर क्या जाना। जब मेन एंट्रेंस ड्राइंग रूम इसका इस तरह का है, तो बाकी तो देख लिया हमने। जैसे चावल आप बनाते हैं, तो एक आप चावल देखते हैं हो गया, तो मतलब दैट इज अ गेटवे। अगर अच्छा एब्स्ट्रैक्ट है, ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट भी अच्छा होगा। That is why it is very important to write an abstract. So abstracts are important parts of report and research papers, and sometimes academic assignments. Academic assignments में भी report abstract writing होता है, that is आपके syllabus में भी है। So the abstract is often the last thing, the last item that you write. It means when you're finished writing your report, your project, उसके बाद आप abstract लिखते हैं। क्यों? तब तक आपको मालूम हो जाता है कि आपने क्या क्या इंक्लूड किया अपने रिपोर्ट में, और एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा उसी से आप निकालेंगे ना। यू विल टेक आउट द की एलिमेंट्स फ्रॉम दैट राइटिंग। सो द एब्स्ट्रैक्ट इज ऑफन द लास्ट आइटम दैट यू राइट, बट द फर्स्ट थिंग व्हिच पीपल रीड व्हेन दे वांट टू हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द होल पेपर। हाँ, सबसे पहले, और आप कहाँ पेश कीजिएगा उसको, सबसे पहले सबसे फ्रंट पेज में आपका एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे आपका मैंने दिखा दिया योर मैनुअल, हाँ, यू हाईलाइट योर की एलिमेंट्स। And before you start writing an abstract, it is suggested that you must have a clear picture of your findings. क्या आपने किया है। अब ऐसा नहीं कट कॉपी पेस्ट आपने कर दिया कहीं से, तो you cannot write the abstract because आपने लिखा ही नहीं। So it is advised that you write a paper and then you take out the key elements after getting a complete picture of your report. Only then you can write an abstract. The next class will conclude with how do I write an abstract, and I'll give you some examples how writing an abstract is important. And I will give you assignments also. Write an abstract on Rahul Bajaj. Content आपके पास already है, report लिखने की जरूरत नहीं है। Rahul Bajaj, Narayan Murthy, और I suggest you write an abstract on the content of Narayan Murthy. नारायण मूर्ति तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। तो उसी आर्टिकल का आप एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, की एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर आर्टिकल। इट शुड नॉट इंक्लूड, इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ जस्ट वन शॉर्ट पैराग्राफ। तो सोचिए कितना कंसाइज लिखना है, बस मेन पॉइंट्स आपको लिखना होगा उसमें, राइट। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। Did you understand? Did you have an idea of abstract क्या होता है?